السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں CNN، میں ہوں حسین الحسن۔ میں ہوں حفصہ آصف۔ ہیڈ لائنز اپنی جانب سب سے پہلے آپ کو بتائیں، انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے مزید 2 مقدمات میں بری کر دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور میاں محمود رشید کو دونوں مقدمات میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے پولیس اسٹیشن کو آگ لگانے کے مقدمے میں عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو 5 برس قید کی سزا سنائی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں جلانے اور پولیس اسٹیشن شادمان کو آگ لگانے کے مقدمات پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے دونوں مقدمات میں شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا، جبکہ انہی مقدمات میں سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، سابق صوبائی وزراء ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود رشید کے علاوہ سابق سینیٹر اعجاز چودھری کو بھی 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے تحریک انصاف کی عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو پولیس اسٹیشن کو آگ لگانے کے مقدمے میں 5 سال قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے عائشہ بھٹہ کو جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں 10 برس قید کی سزا سنا دی۔ عدالت نے پولیس اسٹیشن کو آگ لگانے کے مقدمے میں 12 ملزموں کو بری کر دیا، جبکہ جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں 6 ملزموں کو بری کرنے کا حکم دے دیا۔ عالیہ حمزہ اور صنم جاوید سمیت ضمانت پر رہا ہونے والے ملزم فیصلہ سنانے کے وقت موجود نہیں تھے۔ عدالت نے 4 ملزموں کو کم عمر ہونے پر بری کر دیا۔ شاہ محمود قریشی لاہور کے تینوں مقدمات سے بری ہوئے، جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود رشید کو 3 مقدمات میں سزا ہوئی ہے۔ تحریک انصاف نے 9 مئی سزاؤں کے فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسد قیصر کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلوں میں انصاف دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم نے 9 مئی کی پہلے بھی مذمت کی اور آج بھی کرتے ہیں۔ ہم نے مطالبہ کیا کہ 9 مئی کا ایک ہی ٹرائل ہو، مگر ہماری درخواست نہیں سنی گئی۔ ہم اس کورٹ کے تمام پروسیڈنگ کو کورٹ پہ چیلنج بھی کریں گے، اور ابھی اس فیصلے کے بعد عدالتوں کے اوپر کسی کا اعتماد نہیں رہا، کیونکہ عدالتیں جس طرح فیصلہ کر رہی ہے تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے، اور جس میں انصاف کا دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا کہ اس میں کوئی انصاف بھی ہے یا اس میں کوئی میرٹ بھی بنتا ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ یہ ایگزیکٹو کے فیصلے ہیں۔ جو اتنی ججمنٹیں آئی ہے ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ انصاف کا قتل ہوا ہے۔ چیف جسٹس سے ہم درخواست کرتے رہے ہیں کہ جناب چیف جسٹس، ہم نے ہمیشہ سے 9 مئی کی مذمت کی، نہیں ہونا چاہیے تھا، آئندہ بھی کبھی نہ ہو، پر ہم نے کہا تھا کہ جو الزامات ہے اس کا ایک ٹرائل ہوگا۔ ایک ٹرائل کے ماں سوا ہماری پٹیشنیں پڑی رہی، اس پٹیشنوں پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ وہ فیصلے نہ آنے سے، عدلیہ میں انصاف بر وقت نہ ملنے سے، یا عدلیہ کی طرف سے بالکل انصاف نہ ملنے سے تناؤ بڑھتا گیا، سیاسی تناؤ بڑھتا گیا، انصاف نہیں ملتا، انصاف کا قتل ہوتا رہا۔ وہ آج بھی شروع ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں مودی کو پاکستان کی زندگی کی علامت دریائے سندھ پر حملہ نہیں کرنے دیں گے۔ عوام میں اتنی طاقت ہے کہ بھارت سے اپنے تمام دریا واپس چھین سکیں۔ مٹھیاری کے علاقے بھٹ شاہ میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان نے جنگ شروع نہیں کی، لیکن مکمل پاکستان نے کی۔ پاک فوج نے دشمن کو تاریخی جواب دیا۔ پاکستان پہ بھارت نے رات کے اندھیروں میں ایک ایسا حملہ شروع کیا، ایک ایسا جنگ چھیڑا جو آپ سب نے خود مقابلہ کیا۔ پاکستان نے یہ جنگ شروع نہیں کیا تھا، لیکن مکمل آپ نے کیا۔ ہمارا افواج نے، ہمارا ایئر فورس جس انداز سے دشمنوں کو جواب دیا وہ تو تاریخی ہے۔ تمام جماعتوں نے، تمام قوتوں نے اپنے مشکلات، اپنے اختلافات بھول کے اپنا ملک کا دفاع کیا۔ پاکستان کو اور پاکستان کی پانی کو، پاکستان کی سندھو پہ ایک ایسا حملہ کیا ہے جو اپنے طور پہ ایک تاریخی حملہ ہے۔ مودی یا بھارت اس دریا کے خلاف یا ہمارا سندھو پہ حملہ کرنے کے اعلان کرتا ہے تو وہ ہمارا تہذیب پہ، ہمارا ثقافت کا حملہ کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم نے سب ایک ہو کے مودی کی بربریت پہ، مودی کے اس حملے کے بارے میں، مودی کے اس ارادے کے بارے میں آواز اٹھانا ہے اور جدوجہد کرنا ہے تاکہ اس ظلم کو بھی ہم روک سکیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا گیلپ سروے بزنس کانفیڈنس انڈیکس رپورٹ پر اظہار اطمینان۔ وزیراعظم نے کہا کہ کاروباری اداروں کا پاکستانی معیشت پر اعتماد گزشتہ 4 سالوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔
हुकूमती इक़दामात और इस्लाहाती एजेंडे की बदौलत सिस्टम में शफाफियत आई। हर दिन बेहतर होते हुए मुआशी अशारी हुकूमत की बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों का सबूत हैं। मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात के समरात आम आदमी तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। भारत फिर से सफारती आदाब भूल गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सफारतकारों को हरासा करने से बाज नहीं आया। पाकिस्तानी सफारतकारों की मुसलसल निगरानी का सिलसिला जारी है। सफारतकारों के घर, गैस और इंटरनेट की सहूलियात रोकने की शिकायत भी आ रही हैं। ज़राए के मुताबिक घरों को खाली करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया। घर खाली करने का हुक्म कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही जारी किया गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अखबारात भी अप्रैल से रोक लिए गए। पाकिस्तानी सफारतकारों के बच्चों के स्कूल से दाखिले भी मनसूख कर दिए गए। पाकिस्तान सिंतास मुआहिदे की अमूमी तशरीह से मुतालिक सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा कि 8 अगस्त को इंडस वाटर ट्रीटी की अमूमी तशरीह से मुतालिक सालिसी अदालत का फैसला उन मेयारात की वजाहत करता है जो भारत की जानिब से मगरबी दरियाओं पर नए रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर मनसूबों की तामीर के लिए वाज़े किए गए हैं। सालिसी अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के गैर महदूद इस्तेमाल के लिए जारी रखे और इन दरियाओं पर बिजली की पैदावार के मंसूबे पानी के मुआहिदों के अन मुताबिक तामीर किए जाएं ताकि इन मयारात के मुताबिक जिन्हें भारत बेहतर समझता है। आलमी सालिसी अदालत का फैसला सिंतास मुआहिदे पर पाकिस्तान की मौक़िफ़ की तौसीक़ करता है। भारत की जानिब से मुआहिदे को इल्तिवा में रखने के ऐलान और अदालती कार्रवाई के बायकॉट के तनाजुर में यह फैसला खुसूसी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान ये तवक्को करता है कि भारत फौरी तौर पर इस मुआहिदे को बहाल और सालिसी अदालत के फैसले पर ईमानदारी से अमल करेगा। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर मोटरसाइकिल सवार बहन भाई को कुचलने वाला डंपर ड्राइवर हादसे का जिम्मेदार करार। एडिशनल आईजी कराची ने वाक़े की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि डंपर्स और ट्रक्स में कैमरों, इंश्योरेंस और लाइसेंस के लिए 15 दिन की मोहलत दे दी गई है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन बोले कि डंपर जलाने वालों पर दहशत गर्दी की दफात लगाएंगे। उधर जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती ने गिरफ्तार डंपर ड्राइवर को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। राना खालिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। राशिद मिन्हास रोड सगीर सेंटर के करीब बेकाबू डंपर की टक्कर से बहन भाई की हलाकत का वाकया। ट्रैफिक पुलिस के एक्सीडेंट एनालिसिस यूनिट ने डंपर ड्राइवर को जिम्मेदार करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल गिरी, जिसके बाद महानूर और अहमद रजा डंपर के पिछले टायरों से कुचले गए। डंपर का फिटनेस सर्टिफिकेट था, न जलाए गए डंपर्स में ट्रैकर और स्पीड ट्रैकिंग डिवाइस नस्ब थी। इधर एडिशनल आईजी कराची ने वाकये की तहकीकात के लिए 4 रुकनी तफ्तीशी टीम बना दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है ट्रांसपोर्टर्स को डंपर्स और ट्रकों में कैमरे लगाने, इंश्योरेंस और ड्राइवरों के लाइसेंसों के लिए 15 रोज की मोहलत दी है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। मुआहदा है कि अगले 15 दिन के अंदर वो अपने डंपर्स में, ट्रक्स में कैमरे लगाएंगे, इंश्योरेंस कराएंगे, इंश्योर करेंगे कि ड्राइवर प्रॉपर लाइसेंस शुदा हो, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनको 15 दिन बाद वो गाड़ियां चलाने नहीं दी जाएंगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा डंपर जलाने वालों से नहीं डरते, इन पर दहशतगर्दी की दफात लगाएंगे। दुनिया में कहाँ होता है कोई एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट के बाद आप पूरे शहर में गाड़ियों जलाना शुरू कर दें। हुकूमत अपना काम करेगी, ना किसी के खौफ में आएगी, ना किसी के डर में आएगी, ना किसी के रोब में आएगी। और अगर किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की तो बदमाशों को बदमाशी की तरह से टैकल किया जाएगा। इधर बहन भाई को कुचलने वाले डंपर के गिरफ्तार ड्राइवर को अदालत ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। राना खालिद महमूद, GNN कराची। जश्न आज़ादी और मार्का हक जोश और जज्बे से मनाने के लिए कराची में पूरे जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। शहर भर में चिरागा किया जा रहा है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा GNN राना खालिद महमूद। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त सिविक सेंटर में मौजूद हूँ और मार्का हक और पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी नहायत ही जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जैसे कि ये एक सरकारी इमारत है, इसके भरपूर चरागा से इस इमारत को मज़ीन किया गया है। सिविक सेंटर का ये मुकाम है जहां पर जो है पाकिस्तानी परचम जो है इस बुलंद इमारत पर जो है वो एक लाइटों की सूरत में बनाया गया है। बच्चा बच्चा जो है अपने हाथों में पाकिस्तानी परचम लिए पाकिस्तान की आज़ादी के गीत गाता हुआ नजर आ रहा है। दुश्मन मुल्क को जो है दंदान शिकन जवाब देने के बाद इस साल जो है 14 अगस्त को जो है मार्का हक को जो है एक साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर इस मौके की
मुनासबत से मुख्तलिफ जो है अहम और बड़ी तकरीबात जो है मुनक्कद की जा रही हैं, जहां पर वो है नामवर गुलकार अपनी परफॉर्मेंस देंगे और शहरी जो है उसमें भरपूर अंदाज में शिरकत करेंगे। और शहर कराची में हमें मुख्तलिफ मुकामात पर तमाम सरकारी इमारतें जो है वो पाकिस्तानी परचम से मज़ीन नजर आई और चरागाह का भरपूर एहतमाम किया गया है। यकम अगस्त के आगाज के साथ ही पाकिस्तान भर में इस पूरे महीने को जो है मार्का हक और आज़ादी के तौर पर जश्न की सूरत में मनाया जा रहा है। जी, लाहौर में बच्चे जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाने के लिए कौमी परचम के रंगों में रंगे कपड़े खरीद रहे हैं। इसी हवाले से बताएंगे नुमाइंदा GNN नाकिब कुरैशी। आमद है जहाँ पर जो है तारीख़ी इमारतें सजाई गई हैं, वहाँ पर शहरी जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के अपनी अशिया लेने में मसरूफ़ हैं। जहाँ पर बैजिस और झंडों के अलावा बच्चे जो हैं वो अपने ड्रेस कंप्लीट करने में मसरूफ़ है, वालदैन के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। और जो है 14 अगस्त के हवाले से मुनासबत से ग्रीन और वाइट शर्ट जो है पैंट शर्ट ले रहे हैं, कोई निकर शर्ट ले रहा है, कोई शलवार कमीज़ ले रहा है। इस हवाले से बात करते हैं यहाँ पर जो दुकानदार हैं जिनके पास मुख्तलिफ़ स्टाइल की शर्ट्स हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका काम कैसा चल रहा है और क्या क्या उनके पास नई किस्म के स्टाइल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा बड़ी प्यारी प्यारी शर्टें हैं, कैसा काम जा रहा है और क्या कहते हैं किस किस्म के स्टाइल्स की शर्ट्स हैं? जी हमारे पास 14 अगस्त की हमने खुद डाई भी करवाई हुई हैं, 14 अगस्त की गर्ल्स की भी हैं, बॉयज़ की भी हैं। ठीक है, हमारे पास काफ़ी डिज़ाइन है, तो काम जो है माशाल्लाह ठीक भी है और नहीं भी सही। जी बिल्कुल, ये दुकानदारों की आपने बात सुनी, उनका कहना था कि बच्चों की तमाम वैरायटी यहाँ पर मौजूद है और रेट भी जो है मुनासिब है। 850 तक जो है वो निकर शर्ट यहाँ पर मिल रही है। और साथ यहाँ पर जब शहरियों से बात हुई उनका भी ये कहना था कि वो भरपूर तरीके से जो है वो जश्न आज़ादी मनाएंगे और बच्चों की ख्वाहिशात जो है वो 14 अगस्त के हवाले से पूरी करेंगे, ताकि उनको पाकिस्तान और जश्न आज़ादी की अहमियत के हवाले से जो है उनको काफ़ी हद तक पता चल सके। और उसके साथ उन्होंने जो मार्का हक में कामयाबी थी पाकिस्तान की, वो भी साथ भरपूर तरीके से मनाने का फ़ैसला किया है। जी।